Hello everyone, welcome in Power Plant Engineering of 5th semester as a elective of Mechanical Engineering. Unit 4 Waste Heat Recovery Unit Cogeneration and Trigeneration. Topic 2 Cogeneration. Lecture number 18 prepared by Mrs. Amruta Munle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. As the content of today's lecture as cogeneration, need, opportunities and present practices. Learning outcomes. After completion of this video lecture, you are able to explain with sketches working principle of cogeneration in the given thermal power plants. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट सेशन. तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था व्हाट इज ए वेस्ट हीट रिकवरी यूनिट. तो वेस्ट हीट रिकवरी यूनिट ये जो भी हमारे थर्मल पावर प्लांट्स है और उसके जैसे डिफरेंट पावर प्लांट्स है जिसमें हीट लॉस होती है, उस हीट लॉस को हमें क्या करना है, रिकवर करना है फॉर ए सर्टन पर्पज. दैट इज ए वेस्ट हीट रिकवरी यूनिट. नीड, अपॉर्चुनिटी एंड प्रेजेंट प्रैक्टिस अबाउट ए waste heat recovery plant and unit. As that the introduction of today's topic as a cogeneration. Cogeneration is the utilization of two forms of energy from one. One is a source, that is hot water, heat and electricity from one generating set. According to this, cogeneration is a two form of energy, that is a CO means a co. Co means CO. That's cogeneration is a C start from co. Co means a two and generation means a generation, power, output and form of electricity. That is two form of energy is utilized in this process. That is called as a cogeneration process. According to cogeneration technology, the world first commercial power plant, Thomas Edison's Pierce Street Station, built in 1882, was a cogeneration plant as it made and distributed both electricity and thermal energy. One is the source of thermal and second is a source of electricity. That is the meaning of cogeneration technology. Hence, the concept has been around for many years. With the recent interest in greener energy technology, it is currently becoming more popular. This brings us to the current problem statement. In an effort to decentralize the power grid and utilize the waste heat which accompanies power generation, Althenier Power Consulting have proposed a cogeneration system for Ohio University to provide both 1 megawatt electric power and hot water at around 70 degrees centigrade. So the purpose of cogeneration is the form of two-way energy. One is the electric power and second is a heat. And one is the electric power is in 1 megawatt and hot water at around 70 degrees centigrade. They realize that the average power consumption of OU is 10 megawatt. However, they believe that a significant portion of this power is required for hot water heating. तो ऐसा है कि एक कोजेनरेशन जो कंसेप्ट है ये थॉमस एडिसन पियर्स स्ट्रीट स्टेशन ने बिल्ड किया है 1882 में. तो इस प्रोसेस में उन्होंने ये किया कि थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से पावर ऑफ किया और उसको यूज किया फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी. सो तो ये जो सेकेंड है कोजेनरेशन सिस्टम बाय दिस ओएन यूनिवर्सिटी, तो इन्होंने 1 मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया एंड उसका जो टेम्परेचर था अराउंड ए हॉट वाटर एट अराउंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड.
तो जिसका पावर कंजम्पशन 10 मेगावाट था, वेस्ट हीट रिकवर करने के वजह से वो 10 मेगावाट पावर जनरेशन से हुआ. And they released that the average power consumption of OU is 10 megawatt. However, they believe that the significant portion of this power is required for hot water heating. Cogeneration by thermal power plant. तो अब हम देखते हैं co means two and generation is a power generation electric generation process. तो दो तरीके से आपको यहाँ पे पावर जनरेट करना है. पावर एज ए इज द वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज ए इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड सेकेंड इज ए हीट एनर्जी रिलीज फ्रॉम वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम. दैट इज द जनरेशन ऑफ टू पावर सोर्सेज, दैट्स कोजनरेशन प्रोसेस. तो आइए देखते हैं हम थर्मल पावर प्लांट के अंदर कोजनरेशन सिस्टम को किस तरह से लगाया जाए. तो ये स्टीम पावर प्लांट मीन्स थर्मल पावर प्लांट है जिसके बारे में आप पहले से ही अवेयर. दैट इज ए बॉयलर. बॉयलर से आपको स्टीम मिलेगी, स्टीम से टरबाइन पे जाएगा, टरबाइन रोटेट होगा. टरबाइन जैसे ही रोटेट होता है तो वो यहाँ से हमें वर्क टरबाइन मिलेगा. वर्क टरबाइन मीन्स से पावर जनरेशन मिलेगा. जो भी प्रोसेस है हमने यूनिट 3 में पढ़ी है, जनरेशन ऑफ पावर बाय ए थर्मल पावर प्लांट और स्टीम पावर प्लांट. तो इसके बीच में जो भी होगा फिर उसमें बाद में जो बची हुई स्टीम रहेगी उसको हम ठंडा करने के लिए कंडेंसर में भेजेंगे. कंडेंसर से बाद में जो स्टीम वाटर में कन्वर्ट होती है हॉट वाटर में, उसको हम फीड पंप से फिर से क्लोज फीड वाटर से बॉयलर में स्टीम करने के लिए भेजेंगे. तो स्टीम में यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, वाटर का स्टीम में कन्वर्शन होता है. तो उसके साथ हमें कोल और फ्यूल्स को सप्लाई करना पड़ता टू जनरेट ए हीट. तो इस सिस्टम में जो हीट यहाँ पे जनरेट हुई है, इसकी हीट को रिकवर करने के लिए हम प्री हीटर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर यूज करते हैं इन बिटवीन ऑफ द बॉयलर. दैट इज ए हीट एब्जॉर्बिंग सिस्टम एंड रीयूज ऑफ ए हीट इन बॉयलर. दैट इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोजनरेशन स्टेप्स. एंड सेकेंड जो लॉस हो रही है कंडेंसर में हीट, जो कि वाटर आ रहा है, स्टीम आ रही है, स्टीम से वाटर को फॉर्म करने के लिए हम कोल्ड वाटर कूलिंग टावर का सर्कुलेट करते हैं. यहाँ पे कंडेंसर में जो वाटर इनसाइड से बाहर निकलेगा कंडेंसर से आउट से, वो रहेगा हीटेड, गर्म रहेगा. उस वाटर को हम यूज कर सकते हैं हॉट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से वाटर स्टोरेज टैंक में, और उसे हम फिर से यूटिलाइज कर सकते हैं या डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी इस वाटर को यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए हॉट वाटर. दैट इज टू यूनिट्स आर रिकवर हीट इन बिटवीन ऑफ द बॉयलर और क्लोज फीड वाटर, एंड सेकेंड इज ए hot water tank. One of the other source is the recover of heat is that one. फीड वाटर से कंडेंसर से बीच में जो भी हीट लॉस होगी वो जाएगी आपका फीड पंप से डायरेक्टली क्लोज फीड वाटर हीटर से बॉयलर में. इसके बीच में जो हीट रिगेन होगी, लॉस होगी, उसको वो रहेगा हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पास में. उसको हम फिर से रिसर्कुलेट कर सकते हैं कंडेंसर में. तो इस तरीके से जो हीट दो स्टेप में कन्वर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे प्लांट में मिल रहा है. साथ में हॉट वाटर यूटिलाइजेशन भी यहाँ पे हो रहा है. इस हॉट वाटर को आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में या वेरियस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, क्लीनिंग ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड अदर थिंग्स. दैट इज द प्रोसेस ऑफ कोजनरेशन बाय थर्मल पावर प्लांट. Now the time is to discuss unit outcome achieved by this video lecture as explained with sketches working principle of cogeneration in the given thermal power plants. Summary of today's lecture. आज हमने देखा cogeneration process, need, opportunity and present practice about cogeneration in steam power plant. Program outcome achieved by this video lecture as PO1, PO5, PO6 and PO7 are mapped in this lecture. Now the time is to give the some assignment, and that assignment is a assignment number 18. You all note all the questions of assignment number 18 and
solve in your copy and submit in Genoveno site. According to this assignment, क्वेश्चन 1 इज द एक्सप्लेन नीड ऑफ कोजेनरेशन प्लांट. तो आपको लिखना है कोजेनरेशन प्लांट की जरूरत क्यों है और एक्सप्लेन कोजेनरेशन प्रोसेस विथ नीड स्केच. तो हमने थर्मल पावर प्लांट में कोजेनरेशन प्रोसेस देखा जिसकी डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करना है कोजेनरेशन कैसे होता है. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप ये वीडियो फिर से देख सकते हैं. वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन बाय सॉल्विंग योर डिफिकल्टी. इफ देयर विल बी ए मच प्रॉब्लम and not solved by these watching videos and refer the. Thank you. Happy learning. Keep online.